دعا زہرا کی بازیابی پر والدین نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دعا کی والدہ شہلا رضا پولیس اور میڈیا سے اظہار تشکر کیا ہے۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں دعا کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، چاہتے ہیں کسی اور کی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے مقدمہ درج کروایا۔ دعا نابالغ ہے، نکاح قانونی نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سعود بن مرتضی سے جو اس وقت دعا کی والدہ کے ہمراہ گھر پر موجود ہیں۔ جی سعود، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، کورنگی سے تقریباً 16 اپریل کو گھر سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا کو جو ہے سندھ پولیس نے باول نگر کے ضلع چشتیاں سے جو ہے برآمد کر لیا ہے۔ دعا زہرا کو اس کے مبینہ شوہر اور ایک اور شخص کے ساتھ جو ہے برآمد کیا، اور پولیس کے حکام کے مطابق جو ایک اور شخص جو سہولت کار بتایا جا رہا ہے اس کو لاہور پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ABCC زبیر شیخ کے مطابق دعا اور اس کے مبینہ شوہر کو جو ہے اپنی تحویل میں لے کے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پر کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ایک خوشخبری کی بات ہے کیونکہ کورٹ میں کیس آپ لوگوں نے ہی کر رکھا تھا، کیا کہیں گے، کیا اطلاع آپ لوگوں کو صبح پولیس کی جانب سے ملی ہے؟ تقریباً 6 بجے کا ٹائم تھا اور میرے ہسبینڈ جو مہدی علی ہیں ان کو فون آیا SB صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو، اور زارا ہم نے واضح کروا لی ہے، تو بس انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ اس طرح صاحب مبارک ہو میری۔ پہلے تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آئی کہ کیا بول رہے ہیں یہ اچانک سے، جب انہوں نے بتایا تو ہم نے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا، اور سب نے ہی 2 دفعہ شکرانے کے ادا کیے کہ ہماری بیٹی زندہ سلامت ہمیں خیریت سے مل گئی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے بہت زیادہ، کہ میں آپ کو فیلنگ تو نہیں بتا سکتی، کیونکہ 1 مہینہ 21 دن بعد میں اپنی بیٹی کا یہ سنا ہے، اور جب میں دیکھوں گی اور میں اس کی جب آواز سنوں گی تو میری ہم سب کی ظاہر فیلنگ اور ہوگی۔ آپ بے شک ماں ہیں، لیکن ابھی اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ دوسرا، اگر دعا خود اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے والدین کے ساتھ نہیں رہنا، تب اس میں آپ اس صورتحال میں آپ لوگوں کا کیا رد عمل یا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کیونکہ ہماری بچی اغوا ہوئی ہے، تو میں پہلے دن سے ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کے اندر کمی کیا ہوتی ہے یا اچھائی کیا ان کے اندر اچھائی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ظاہر سی بات ہے بیٹی ہمارے پاس ہی آئے گی، اور وہ بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کی پکچر بھی دیکھیں تو آپ آرام سے گیس لگا سکتے ہیں کہ وہ بچی کتنی ہے، تو وہ تو ہم سے زیادہ، ہمیں یقین کریں ہمیں اپنا نہیں تھا، ہم تو چلے روتے تھے، بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی چپ کرا ہی دیتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، بچیاں دیکھ رہی ہیں یا اللہ کرے گا بہتر کرے گا، تو ہمیں اس کا سوچ کے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کس حال میں ہوگی، اکیلی ہوگی، ماں باپ کو پکارتی ہوگی، اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوگی، تو ہمیں اس کا سوچ کے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اذیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرنا اس کی اور خیر خیریت سے لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سب دیکھیں گے کہ ہماری بیٹی انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گی۔ بالکل، پولیس کا بھی یہی کہنا ہے، سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آسانی سے صلح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے۔ اس پہ کس گراؤنڈ پر آپ لوگ اس کو کریں گے چیلنج، اگر کوئی ایشو آتا ہے کہ دعا کو جو ہے ہماری تحویل میں دیا جائے، اور دوسری طرف جو کیونکہ ظہیر جو کہ اس کا میں نے شوہر بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف سے بھی یہ ہے کہ پولیس ہراساں کر رہی ہے اور وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا گراؤنڈ ہوگا کہ دعا آپ کی تحویل میں دی جائے؟ دیکھیں، یہ تو وہ لوگ بول رہے ہیں نا، کیونکہ جو بھی بچیوں کو اغوا کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کی ہوں، تو جو بچیاں جب اغوا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی سیف سائڈ یہی رکھی ہوتی ہے کہ بیان دلانا، اور دوسری جو یہ کرواتے ہیں FIR باپ کے خلاف، خاندان کے خلاف، تاکہ وہ ڈھونڈ نہ سکے، ماں باپ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو پتہ تھا کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہماری بچی اغوا ہوئی ہے، تو کیونکہ ہم نے تو وہ ڈھونڈا، اور ایک ماں باپ ہونے کا فرض دیا کہ ہم نے اپنی بچی کی آخری کوشش تک کی کہ ہمیں چاہیے اور ہم اپنی بیٹی کی حفاظت کریں گے، تو ہم نے کی، اور ہمارا جو ساتھ بھی دیا میڈم شیلا رضا ہے، انہوں نے بہت دیا، پھر ہماری سندھ پولیس نے بھی بہت ساتھ دیا، اس میں ڈفرینٹ ایجنسیاں جو ساتھ دے رہی تھیں ان کا، پھر جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یقین کریں پاکستان سے باہر
इतनी माओं के फ़ोन, मैं आपको उनकी फीलिंग नहीं बता सकती। मैं तो चले माँ हूँ ना, उन्होंने मेरी बेटी के लिए नज़र नियाज किए हैं, उन्होंने मेरी बेटी के लिए दुआएं की हैं, मन्नतें मानी हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो सब पाकिस्तानी माँ बाप, बहन भाई और जितने बाहर भी हैं, उन सब ने हमारे लिए बहुत दुआ की है। मैं उन सब का, आप सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप लोगों का ऐसे ही साथ चाहिए, क्योंकि देखिए ये मेरी बेटी की बात नहीं थी। हम चलें चुप होके बैठ जाते, रो पीट के बैठ जाते कि बच्ची हमारी कहाँ गई। हमें तो नहीं पता था कौन ले गया कौन नहीं लेके गया। हमने तो यकीन करें उनको देखा तक नहीं था, ना हमें पता था ये कौन लोग हैं और ये क्या करते हैं। तो अगर हम चुप हो जाते तो ये तो आम बात हो जाती कि ये बाहर बच्चियों को लेके जाते। आज मेरी बेटी को लेके गए, कल आपकी बहन, आपकी बेटी, किसी को भी ले जाते हैं ना। तो इस चीज़ से ये तो हो जाएगा कि सब लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कानून थोड़ा सख्त हो जाएगा, और हमारी बच्चों को कोई हाथ डालने से पहले से कम 100 बार सोचेगा तो सही कि भाई मैं भी पकड़ा जाऊंगा अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो। बिल्कुल, ये दुआ ज़रा की वालदा थी और हर माँ यही चाहती है कि उसकी औलाद के लिए बेहतर से बेहतर हो। अब पुलिस का ये कहना है कि जब उन दोनों को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा तो इब्तदाई तौर पर सिटी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद सिंधाई कोर्ट में भी उनको पेश किया जाएगा और अदालत इस बात का फैसला करेगी कि दुआ ज़हरा को कहाँ रखा जाएगा। जब तक जो है पुलिस की तहवील में ही ये दोनों रहेंगे। हुकाम का ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान भर में ही मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई ताकि दुआ ज़हरा को बरामद किया जा सके, लेकिन ये दोनों मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना रहा इदारों को, लेकिन अब तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसे के को बरामद कर लिया। बहुत शुक्रिया, साउद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने उम्मीद जाहिर की है कि दुआ को वालिदैन के हवाले किया जाएगा। आपको बता रहे हैं दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने भी उम्मीद जाहिर की है कि दुआ को वालिदैन के हवाले किया जाएगा। देखिए आज सुबह 6 बजे के करीब मुझे जो सिंध पुलिस की तरफ से कॉल आई थी। एसएसपी साहब ने मुझे कंफर्म किया कि बेटी जो है रिकवर हो गई है, और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सिंध पुलिस ने कोई ऑपरेशन किया था बहावल नगर के अंदर। अब डेफिनेटली अब जो कार्रवाई है वो कोर्ट के अंदर होगी, और कोर्ट के अंदर उसकी एज वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। उसके बाद जो है वो कोर्ट जो मुनासिब समझेगी वो फैसला करेगी। मुझे चूँकि पता है कि बच्ची 14 इयर्स की है, तो वो उसी हिसाब से बच्ची इंशाल्लाह ताला वालिदैन को दी जाएगी। देखिए ये बच्ची अगर बिलफर्ज 1% चांस से एक्सेप्ट भी कर लिया जाए इस बात को, तो बच्ची चूँकि अंडर एज है, वो शादी वाला सीन तो ये है ही नहीं, शादी तो नल एंड वाइड हो जाती है। तो उसके बाद जो है बच्ची अल्टीमेटली घर आएगी, क्योंकि दारुल अमान उस सूरत में बचा जाता है अगर वो उसकी शादी वैलिड हो। अगर शादी ही अनवैलिड हो जाए, नल एंड वाइड हो जाए, तो बच्ची ने अल्टीमेटली घर ही आना है, और ये मुझे 100% यकीन है कि बच्ची जो है वो मेरे पास आएगी। और सेकेंडली हम जो एक चीज़ जो बड़े अरसे से उठाए हुए थे, ये वो भी प्रूव होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिजली का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि लोड शेडिंग बुनियादी मसला है, शमसी तवानाई और हवा से बिजली की पैदावार समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा करने की ज़रूरत है। ये लोड शेडिंग एक बड़ा बुनियादी मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और मैं सुबह भी जो वज़ीर तवानाई है उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कुछ डेडलाइन दी है बिजली के हवाले से। मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा, एक तो ये बिजली के जो मंसूबे हैं ये तो होने चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो शमसी तवानाई है, हवा से बिजली पैदा होती है, और लोकलाइज तरीके से भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। और मैं समझता हूँ इस मुश्किल वक्त में इस तरह की जो अर्बन स्पेसेस हैं ये बड़ी कारामत साबित होती हैं कि जब गर्मी आपको लगती है तो इस तरह की ओपन स्पेसेस में आप इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सिर्फ सदर के इलाके में ये हो गई एम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क, पीपल स्क्वायर, ये तमाम एरिया, बर्न्स गार्डन, हमने पिछले दिनों सब कुछ ठीक करके शहरियों को दिया ताकि शहरी अच्छी फिजा में सांस भी ले सके, उन चीज़ों को एंजॉय कर सके। तो ये अर्बन स्पेसेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ वफाकी हुकूमत को बिजली की लोड शेडिंग की हंगामी बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। कोलंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के तहत आलमी योम माहौलियात पर शजरकारी तकरीब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का खिताब जारी है। बराह रास्त देखिए। जमीन के ऊपर हमने प्लांटेशन की। आज आप जाएं आपको एक मुख्तलिफ सिचुएशन नजर आती है। उन पौधों की वजह से, उन दरख्तों की वजह से अब आपको परिंदों की वापस नक्लो हरकत शुरू हो गई है। वहाँ पे आपको परिंदे नजर आते हैं। और चूंकि आपने इतवार की सुबह ये इवेंट रखा, मैं तमाम सुनने वालों को कहूंगा
कि अगर आप संडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ चले जाएं वॉक शॉक के हवाले से, बाद में नाश्ता कर लीजिएगा हैवी वाला, तो आपको खूबसूरत परिंदे नजर आएंगे वहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और एक बड़ा अच्छा लगून वहाँ बनाया है, उस पानी से अट्रैक्ट होती हैं वो परिंदे और वो आते हैं। और मैं समझता हूँ हम लोगों को बहैसियत कौम अब अपने बच्चों को, मुझे बड़ी खुशी होती है आज बीएमसी के बच्चे बच्चियां यहाँ पर आए हैं, कि हमें इन बच्चों को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि दरख्तों की इंपॉर्टेंस क्या है। ये दरख्त होंगे तो हम लोग होंगे, अगर दरख्त नहीं होंगे, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, उसके असरात आ रहे हैं, हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ सबको इंस्पिरेशन इस बात से लेनी चाहिए। किसी नेक आदमी ने शायद 50 साल पहले ये लिग्नम का पौधा लगाया था, और आज ये लिग्नम का पौधा इतना बड़ा हो गया कि आप उसके साए में आराम से बैठ सकते हैं, आपको टेंट लगाने की शायद जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से आप बर्न्स गार्डन जाएं, आप फ्लेयर गार्डन जाएं, किसी नेक आदमी ने 60-70 साल पहले नीम लगा दिया, बरगद लगा दिया, मोरिंगा लगा दिया। मैं अभी एमपीएस मार्केट से आ रहा हूँ, मीर करमली तालपुर रोड से आ रहा हूँ। एमपीएस मार्केट में मैंने कोई 1.5 साल पहले बीवीएस स्कूल के बच्चों के साथ प्लांटेशन की। हमने वहाँ नीम लगाया, नारियल लगाया, मोरिंगा लगाया, गुलमोहर लगाया। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इतवार रश इतना नहीं होता, आप गुजरे वहां से, आपको वो दरख्त 20-25 फीट ऊंचे नजर आते हैं और दिल खुश होता है। आज भी जब मैं गया मैंने देखा यार कि ये वाला दरख्त मैंने खुद लगाया था, ये मेरे भाई ने लगाया था, ये फला बंदे ने लगाया था। बिलावल साहब आ गया, बिलावल साहब से ने नारियल लगाया, आज मुझे खुशी हुई कि वो नारियल भी परवान चढ़ रहा है। तो अगर मैसेज हम सब ये समझ लें कि इस शहर में गालिबन कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2-2.25 करोड़ लोग रहते हैं, हम मैसेज ये कर लें अपने आप को कि हम सबको एक पौधा लगाना है और उसको लुक आफ्टर करना है। तो आप जस्ट इमेजिन कि वो 2 करोड़ पौधे आइंदा 5 सालों में किस तरीके से हमारे माहौल को तब्दील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेहतर सदका जारिया नहीं हो सकता, इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। मैं पर्सनल बात करता हूँ, मैंने अपनी बेटी की पैदाइश पे अपने घर के सहन में बाहर गुलमोहर लगाया। मेरी बेटी माशाल्लाह 7 साल की, गुलमोहर भी 7 साल का इस वक्त, और दोनों साथ बढ़ रहे हैं। बेटे की पैदाइश हुई तो नीम लगाया, बेटा माशाल्लाह 4.5 साल का है, वो नीम के दरख्त इस वक्त 4.5 साल के हो गए। तो मैं जब शाम में वॉक करता हूँ, गुजरता हूँ, तो मेरी नजर जरूर पड़ती है उन दोनों पौधों के ऊपर। इसी तरह मैं तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि अगर हम सब ये करना शुरू कर दें कि अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और हमारे जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं उनके लिए सदका जारिया समझ के हम इन चीजों को करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आप सब गौर कीजिएगा, हमारे कब्रिस्तान हरे भरे हैं, यानी कि जिन लोगों की अमवात हो गई हैं उनके लिए हमने हरियाली कर दी, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके लिए हम शायद भूल जाते हैं। हम कहते हैं प्लास्टर कर दो, सीमेंट लगा दो, वो क्या कहते हैं टाइल्स, कंपनी का नाम नहीं लेता, कंपनी वाले नाराज हो जाएंगे मुझसे, वो टाइल्स लगा दो, कंक्रीट हर चीज को कर दो। मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट को हमें री इन्वेंट करने की जरूरत है, और इस री इन्वेंशन में नकी साहब आपको जो मदद हुकूमत की चाहिए, जो हुकूमत आपको बल्दियाती इदारों की चाहिए, जो मदद आपको मेरी बात से चाहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल शाना बशाना इसके अंदर खड़ा हूँगा। जब आप तकरीर कर रहे थे, सलमान साहब मुझसे बात कर रहे थे, मलीर नदी पे एक जगह ने आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पर काटी वाले प्लांटेशन करना चाहते हैं। इन्होंने कहा आप इजाजत दे दें, इजाजत आपको आज से मिल गई, दस्तखत मुझसे आप करवा लें, अर्बन फॉरेस्ट स्टैब्लिश करें। जो मदद आपको एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से चाहिए, जो मदद आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चाहिए, जो मदद आपको केएमसी से चाहिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये अर्बन फॉरेस्ट स्टैब्लिश करें। और मिनिस्टर फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तैमूर तालपुर साहब, वो भी बड़े अग्रेसिवली प्लांटेशन के ऊपर फोकस करें। मैं आपको आज वॉलंटरली ऑफर कर रहा हूँ कि मैं और तैमूर साथ आएंगे, आपके साथ प्लांटेशन करेंगे। लेट्स फिक्स अप अ टाइम कि कब वो प्लांटेशन स्टार्ट होगी, ताकि हम वो तमाम चीजें कर सकें। आपने कहा लेजिस्लेशन के हवाले से डन, मैं समझता हूँ कि आ जाए आप मेरे पास, अगर कानून साजी करने की जरूरत है इस तरह की, तो कानून साजी करने में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। विल गेट द लॉ पास। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छे काम करने के लिए आपको कानून की जरूरत नहीं होती है, अच्छे काम के लिए आपको दिल की जरूरत है, दिल से सोचें। और दरख्त वो काम है जो कि दीन कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गए कि सदका जारिया है। तो इसके लिए कानून साजी आप कहेंगे, कानून साजी कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कानून साजी से बेहतर है कि हम लोगों के अंदर वो एहसास उजागर करें, और इस तरह की जो तकारीब है उसके अंदर हम लोगों को इंगेज करके लोगों को समझा सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि ये नेक काम है, ये अच्छा काम है, प्लस आपका डायरेक्ट फायदा होगा, बिकॉज यही हवा आपको भी महसूस करनी है, मुझे भी महसूस करनी है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सबके लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हरा भरा होगा, खूबसूरत होगा, और हम लोग मिल के उस खूबसूरती को कंट्रोल भी कर पाएंगे, मेंटेन भी कर पाएंगे, उसको लुक आफ्टर भी कर पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो बताएं, कराची पोर्ट ट्रस्ट इंतजामिया की जानिब से आलमी योम माहौलियात की मुनासबत से चाइना क्रीक पर मैंग्रोव ड्राइव यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की शिरकत है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज आलमी योम माहौलियात है और इसके मुनासबत से जो है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से कराची के इलाका मायकुलाची जहाँ पर क्रीक, चाइना क्रीक का ये मौजूद है इस वक्त हम, और इनकी जानिब से जो है वो एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें मैंग्रोव्स के हवाले से जो है वो आज यहाँ पर प्लांटेशन की जा रही है। और कराची पोर्ट ट्रस्ट इंतजामिया और साथ साथ जो बहरिया यूनिवर्सिटी है उसके तलबा तलबात यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ये मुख्तलिफ प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं, जिसमें एवेंशिया मरीना जो है, जो कि बताया जाता है कि समंदर की जो हाई टाइड्स होती है उनको रोकने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। ये पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि अकब में जो यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात हैं जो कराची पोर्ट ट्रस्ट इंतजामिया की टीम के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर डेब्रिस, यहाँ पे जो मलबा मौजूद है, जो कचरे का अंबार था, वो सब हटाया गया है, उसकी क्लीनिंग की गई है। माहौलियात का दिन है, माहौल को साफ बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के आज इकदाम किए जाते हैं, मुख्तलिफ NGOs की जानिब से कुछ इवेंट्स किए जाते हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट भी इसमें अपना अहम किरदार अदा करते हुए आज दिखाई दे रहा है। वफाकी वजीर जो है फैसल सब्जारी, आज उनको इस इवेंट में शिरकत करनी थी लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। KPD इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, चेयरमैन KPD, इसके साथ साथ जो वफाकी सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात इस कैंपेन में आगे हैं और जो ये प्लांटेशन है, जो मैंग्रोव ड्राइव है, वो यहाँ पर की जा रही है। और उनका यही कहना है, यही मौक़िफ़ है इंतजामिया की जानिब से कि आज के दिन माहौल को साजगार बनाने के लिए, खास तौर पर समंदरी माहौल को साजगार बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हबीब। तो बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मीर अली तालपुर रोड की बहाली के बाद इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा कि काफी लोग मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं, इन लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा, काम हो रहा है, बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत की जाएगी। काफी लोग वैसे मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि काम हो रहा है, लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता कि बेहतरी हो रही है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, बिला तफरीक, बिला एनी पर्सनल इंटरेस्ट के, इस इलाके का MP नजमी आलम नहीं है, इस इलाके का MP MNA कोई और है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि अल्लाह के बंदे यहाँ बसते हैं, हम लोग सब मिलकर काम करें। और मैं सबको दावत दे रहा हूँ, आइए, हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए। जिस कैपेसिटी शहर की, सूबे की, इस मुल्क की खिदमत करनी पड़ी, हम तमाम लोग। KMC ने शहर के बस स्टॉपों को खूबसूरत और नक्शो निगार से आरास्ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अफसरान कहते हैं मुर्तजा वहाब के विजन से मुतासिर होकर इस काम का आगाज किया गया है। शारा फैसल के बस स्टॉप पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बाद पेशे खिदमत है सरकारी इदारों की पार्टनरशिप। जी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहर में कई तरक्याती काम हुए, लेकिन एक नई रिवायत सामने आई है। KMC के 2 महकमों की जानिब से, MUCT का महकमा है यानी म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट, और महकमा सिटी वार्डन, इन दोनों के इश्तराक से और इनके चंद अफसरान की दिली ख्वाहिश के नतीजे में कराची में जो बस स्टॉप हैं उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। शहर कायद की अगर बात की जाए तो वॉल चॉकिंग का ख़ात्मा जो है यहाँ पर मुमकिन नहीं बनाया जा सका है, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाए जाने के बावजूद, और शहर की बदनुमाई का सबब बन रही है वॉल चॉकिंग। इसके ख़ात्मे के लिए एक बेहतरीन इकदाम हमको 2 इदारों के माबैन दिखाई दिया है। मोइज़ अहमद अंसारी, डिप्टी डायरेक्टर MUCT हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मोइज़ साहब, कैसे आया ये ख्याल? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये सिंध के जो है बेसिक सकावत है उसको उजागर करने के लिए हमारे साथ सिटी वार्डन के जो जवान हैं, ताकि ये वॉल पे जितनी भी वो मुख्तलिफ जो है ना लगी हुई होती हैं इश्तिहारात, उल्टे सीधे, हमारी फैमिली के साथ आप जाएँ तो फैमिली के साथ जाना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से जो है ये ख्याल वो निकाला गया कि इसको इस तरह अरेंज किया जाए। हमारे डायरेक्टर साहब ने ये इसको वो सोचा कि खूबसूरत किस तरह से बनाया जाए।
تو گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی بس اسٹاپ کو بھی اس طرح خوبصورت کتنے مقامات پر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کب تک مکمل ہو جائے؟ یہ انشاءاللہ یہاں پہ شارع فیصل کے اوپر ہم نے جو ہے 3 سے 4 جو ہے بس اسٹاپس کے اوپر جو ہے نا اسی طرح سے ہم ڈیکوریٹ کریں گے ساری. بالکل ڈیکوریٹ کریں گے. ڈائریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب، شہر میں جو پبلک پراپرٹی ہے وہاں سے لوہا سریا چوری ہونا عام سی بات ہے. اس قسم کے خوبصورت نقش و نگار بنتے ہیں، اس پہ لوگ وال چاکنگ کر جاتے ہیں. کیا کردار ادا کرے گا آپ کا محکمہ؟ ہمارے جوان یہاں مستقل موو کر رہے ہیں. اب شارع فیصل کو ہم نے آئیڈیل سڑک بنا دی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے پیڈسٹرین بنے ہوئے ہیں ہمارے، اس کے بعد جو مختلف تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، پمفلیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم صاف کر رہے ہیں. ہماری 2 گاڑیاں 24 آور ایک اس طرف ایک روڈ کی اس طرف موو کر رہی ہیں. جی بالکل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن شہر سے مسائل کا خاتمہ عوامی تعاون کے بغیر ناممکن ہے. عوام کو بھی آگے آنا ہوگا اور شہر کو بہت شکریہ رضوان.